So now let's see this passage from the 2025 paper, right? So this is a very good passage. This is about environment, right? Environment से लिया गया passage है. तो यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट आई हैव सीन लाइक दे यूज देयर नॉलेज फ्रॉम द जीएस, राइट? पर यहाँ पे हमें जो पैसेज में दिया है उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स रीड द पैसेज. मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम just to conserve biodiversity will affect the commercial potential as well as the livelihood dependent on the ecosystem. So it's talking about the ecosystem, right? So ecosystem, if we are just क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंजर्व कर रहे हैं, राइट? सो इट विल निगेटिवली इंपैक्ट, राइट? किस किस पे निगेटिवली? कमर्शियल पोटेंशियल पे, राइट, एंड लाइवलीहुड पे. There is also a conflict between using an ecosystem only for livelihood, for commercial exploitation, or strictly for conservation, right? So there are three things, right? So if we are using the ecosystem only for livelihood, there also a conflict. If we are using ecosystem just for commercial exploitation, right, there also we are having conflict. Okay, now deforestation caused due to commercial exploitation, right? So due to commercial exploitation, what is happening, right? Now deforestation is happening because of commercial exploitation, right? Will lead to indirect harm like flood, right? Like flood, siltation problem, right? And microclimatic instability, right? So climatic instability will come. Apart from adversely affecting livelihood, it will also affect, right, livelihood. It will negatively impact the livelihood dependent on the forest. These conflicts are particularly acute in developing countries, right? ये जो conflict है वो ज़्यादा कहाँ पे है? Acute developing countries में, right? Where the dependence of people on the ecosystem is significant, right? So लोगों की जो इकोसिस्टम पे, पीपल की जो डिपेंडेंस है इकोसिस्टम पे, वो बहुत ज्यादा हाई है, राइट? एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज द पोटेंशियल. कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से क्या फायदा हो रहा है? नेशनल इनकम विल इंक्रीज, राइट? इट विल बूस्ट द नेशनल इनकम. ओके, तो समझ में आ गया. यहाँ पे ऑथर ने क्या किया? सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस किया है और कुछ नहीं बताया, राइट? सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. Which one of the following statement best reflect the critical message conveyed by the author of the passage? So what is the critical message author is saying? Author is saying, जैसे हमने देखा इमेज में कि there is a conflict between the three, right? Livelihood, commercial exploitation, right, and the conservation. Now first, conservation of biodiversity is not an issue to be worried about when some people dependent on ecosystem for their livelihood, right? So पहली लाइन ही गलत है क्योंकि वो बोला है conservation is an issue, right? यहाँ पे not an issue बोल रहा है, so this is wrong. First statement directly wrong है तो, right? Now second, commercial exploitation of forest goes against the fundamental right of the people dependent on forest for food and shelter. अब देखो जनरली क्या होता है कि जो जीएस की नॉलेज यूज करेगा उसको लगेगा कि हाँ दिस इज राइट, बट ऑथर ने ऐसा कुछ डिस्कस किया नहीं. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ऑथर ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करी है बिल्कुल भी, राइट? नाउ थर्ड, सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम while being together exacerbate one another leading to conflict and imbalance, right? So this is correct, right? क्योंकि livelihood और degradation, right, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, right? तो आप देखो कि अगर उसने बोला है कि अगर हम सिर्फ एक को कंजर्व करेंगे, लाइवलीहुड को, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कंजर्वेशन, राइट? सो व्हाट विल हैपन? द रिसोर्स विल डिग्रेडेड, डिग्रेडेशन विल हैपन, राइट? उसकी वजह से क्या होगा कि नाउ फॉर द लाइवलीहुड दे विल एक्सप्लॉइट more the natural resources, then the more degradation, right? So they are increasing one another leading to conflict and imbalance. तो ये प्रॉब्लम बता रहा है ये वाला ऑप्शन, ऑथर भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर पैसेज प्रॉब्लम बोल रहा है, ऑप्शन में भी प्रॉब्लम ही है यहाँ पे, राइट? ये प्रॉब्लम ही बता रहा है ये वाला सेंटेंस, सो दिस इज करेक्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके? ऐसा उम्मीद नहीं करना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल मैसेज, क्या मैसेज दे रहा होता. नाउ ऑप्शन डी को देखते हैं. कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड.
राइट। तो एक तो एक्सट्रीम है, कंप्लीटली आ गया, राइट। सो एक्सट्रीम वर्ड का यूज हो रहा है। और सेकंड उसने बोला है कि पैसेज में व्हाट दे आर सेइंग दैट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का बेनिफिट क्या है, दैट इट इंक्रीज द नेशनल इनकम, राइट। तो ऐसा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन डी। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट। नाउ अब एक और क्वेश्चन है इस पैसेज पे, उसको देखते हैं। Now this is the question with reference to above passage the following assumptions. So we have to find the assumptions. What is the assumptions have been made, right? Now first assumption क्या दिया हुआ है? No country need to depend on ecosystem to boost national income, right? So first of all अगर आप देखो no country है ना, so this is very extreme statement. Second, author is saying that in developing countries, author ने बोला है, right? In developing countries कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन क्या करता है, नेशनल इनकम को बूस्ट करता है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो ये, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, ऑथर ऐसा नहीं बोलेगा, है ना, कि वो बोल कुछ और रहा है और उसका अजम्पशन कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो दोनों अलाइन होने चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। नाउ सेकंड, रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्स विद दोज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, राइट। सो ऐसा ऑथर ने कहीं कुछ बोला नहीं है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, या उसने शेयरिंग वगैरह की कोई बात नहीं करी है, राइट। सो रिसोर्स रिच कंट्रीज, राइट। सो ऐसा भी कुछ नहीं बोला है, डेवलप कंट्रीज के बारे में कोई बात नहीं करी है, डेवलपिंग के बारे में बात करी है, राइट। वहां भी है इश्यूज, पर वहां पे इतना एक्यूट नहीं है, उसने एक्यूट वर्ड का यूज किया है, राइट। तो ऐसा शेयरिंग वाला उसने नहीं बोला है, उसने सिर्फ प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशंस की बात नहीं करी है, राइट। सो वी कैन नॉट एज्यूम some solution here that sharing should happen, right? So this is not correct, right? So both are not correct, so the answer will be neither first nor second. Okay, so I hope आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है पैसेज को। Okay, now let's see the next passage. So this is the next passage. Okay, so this is a very good passage, and on this passage there are two questions being asked, right? So first of all we will read the question, right? ये वाला पैसेज ज्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगा था, राइट। सो मैनी स्टूडेंट फाइंड इट टफ इन द एग्जाम, राइट। सो लेट्स रीड द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्ट्री के बारे में बोल रहा है। सजेस्ट देयर इज ए स्टीप लर्निंग कर्व, मीनिंग, इसका मीनिंग बता रहा है दैट एज मोर इज प्रोड्यूस कॉस्ट फॉल रैपिडली, बिकॉज, क्यों कॉस्ट क्यों फॉल कर रही है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग बाय डूइंग, राइट। तो यहां तक पहले हमें समझना है, राइट। तो क्या बोला, हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्या बता रही है कि देयर इज ए स्टीप लर्निंग कर्व। स्टीप लर्निंग कर्व मतलब क्या है कि द मोर इज प्रोड्यूस, तो कॉस्ट फॉल हो रही है ना, जो कॉस्ट है वो कम हो जा रही है, राइट। क्यों हो रही है कॉस्ट कम? एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, मतलब अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं देन प्राइस कम पड़ता है, राइट। जो उसकी कॉस्ट जाएगी दैट विल बी लेस, राइट। सेकंड, लर्निंग बाय डूइंग, कि अगर हम कुछ चीज बना रहे हैं देन वी विल गेट एक्सपर्टीज इन दैट, राइट। ओके, सो उस वजह से भी कॉस्ट कम बढ़ेगी, राइट। नाउ द फर्म ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, राइट। तो ये बिल्कुल फाइनल ऑथर ने बोला है कि जो फर्म का ग्रीन इनोवेशन है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, राइट। मतलब यहां पे मीनिंग दिया है द मोर ए फर्म डज द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर, राइट। पार्ट डिपेंडेंट का मतलब यहां पे क्या दिया है ऑथर ने, द मोर ए फर्म डज, कोई कंपनी जितना करेगी, राइट, उतना ही वो फ्यूचर में ज्यादा करेगी, है ना। द मोर ए फर्म डज द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, राइट, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एविडेंस, एविडेंस मींस एग्जांपल, सो दे आर गिविंग वन एग्जांपल फॉर दिस इज द कोलैप्स इन द प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट, कि उसका प्राइस कोलैप्स हो गया, राइट, which became about 90% cheaper during the 2010, repeatedly beating forecast, right? यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली, राइट, इफ वी आर मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट। तो इकोनॉमीज को क्या फायदा होता है, दैट दे गेट मोर टाइम टू एडजस्ट, अलोइंग देम टू रीप द बेनिफिट, देन दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ path dependent green investment without much disruption, right? So moving early है ना and gradually से क्या फायदा हो रहा है, they get more time to adjust, right, and they can reap the benefit of path dependent green investment without much disruption. Okay, now next, a late more chaotic transition is costlier,
अगर लेट कर रहे हो देन देयर विल बी ए chaotic ट्रांजिशन होगा, राइट, स्मूथ नहीं होगा, राइट, जैसे यहाँ पे ग्रेजुअली लिखा है उसने, दैट विल बी chaotic एंड दैट विल बी कॉस्टली, राइट। तो हमने बहुत डिटेल में पैसेज को पढ़ लिया, राइट। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन को देखते हैं अभी, राइट। So this is the first question. Which one of the following statement best reflect the? So we have to tell the central idea of the passage. What is the central idea of the passage? Right. First, economies of scale is essential for transition to green growth. Right. This is correct. Right. Economy of scale hoga, then the cost will fall. Right. That is essential for transition to green growth. So this is correct. Right, but one thing is missing in this, that we have to move early, right? अगर लेट मूव करेंगे then economy of scale को फायदा नहीं होगा, right? So this is correct, right? So this is correct, but not the full argument, right? So normally we have to select options which capture the passage in totality, right? कि complete message जो है passage का वो आना चाहिए, right? Now second देखते हैं, अगर नहीं होगा तो यही मार्क करेंगे, right? Now second, modern technological progress is intensely linked to path dependent innovation, right? So this is correct, right? That जो modern technology है कि जो progress है it is linked to path dependent, उसने बोला ही है कि path dependent है, right? technology की जो innovation है, but this is a general idea, right? So this is a general statement they are making, but they are not talking about, but the passage is about the green renewable energy, right? Or green investment, right? Now, so this is also correct, right? ये बोला है author ने, but this is also not complete, right? Now third देखते हैं, countries with large economy are in a better position to adopt green technology, right? So passage में कहीं पे large और small economies के बारे में बात नहीं करी है, right? That they will get a benefit, right? With large economy को क्या होगा, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये क्या एज्यूम करेगा कि लार्ज इकोनॉमी है तो उनके पास दे विल हैव मोर मनी, सो दे आर इन ए बेटर पोजीशन, राइट? ऐसा नहीं है, मेन पॉइंट क्या बोला है उसने, ऑथर ने, कि वी नीड टू स्टार्ट अर्ली, राइट? सो ऐसा ऑथर ने बोला नहीं है ना लार्जर इकोनॉमीज के बारे में, ओके। नाउ लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डी, टाइमिंग प्ले क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राइट? सो अगर आप पैसेज को देखो, सो द पैसेज इज होल अबाउट अर्ली एंड लेट, राइट? कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूव कर रहे हैं या लेट मूव कर रहे हैं, सो दिस इज करेक्ट, है ना? एंड ये पूरा पैसेज का मेन पॉइंट भी है, सो this will be the answer, option D, right? Option A and B are also correct, right? So B is just a general statement, right? So the missing point here is the author is talking about the green innovation, right? And in the first option we are missing that we have to move early. The statement is correct, right? But this is not the central idea, okay? तो देखो एग्जाम में ऐसे ही होता है कि ऑप्शन सिमिलर है, बट वी हैव टू ऑलवेज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, राइट? इसलिए आप देखोगे सारे क्वेश्चंस में बेस्ट लिखा रहता है कि वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, बट हमें उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है वही चूज करना है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पैसेज पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द अजम्पशंस, राइट? सो व्हाट इज द अजम्पशन? फर्स्ट, path dependent green investment will eventually, right? Path dependent and green investment will eventually most likely benefit growth as well as public finance in a country like India, right? तो क्या ऑथर के दिमाग में ऐसा है, क्या ऑथर इस चीज पे बिलीव करता है? यस, क्योंकि ऑथर ने पाथ डिपेंडेंट बोला है, ठीक है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट? इट विल मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ, क्योंकि चीप होगा एक तो, राइट? सो इट विल बेनिफिट द पब्लिक फाइनेंस, राइट? एंड जो ट्रांजिशन है दैट विल बी ग्रेजुअल, राइट? पैसेज में दिया हुआ ही है कि द इकोनॉमी विल गेट मोर टाइम टू एडजस्ट, है, राइट? एंड दे कैन रीप द बेनिफिट, सो दिस इज करेक्ट। यहाँ पे बेनिफिट आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, पब्लिक फाइनेंस में ही फायदा हो रहा है बिकॉज चीप, सो दिस अजम्पशन इज करेक्ट। नाउ सेकंड, इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी, देयर विल मोस्ट लाइकली बी एन इजी ग्रीन ट्रांजिशन, राइट? तो सोलर का एग्जाम्पल दिया ही है ऑथर ने, राइट? सो वो एग्जाम्पल दे रहा है ऑथर, एग्जाम्पल क्यों दिया है सोलर के बारे में? बिकॉज वो बोलना चाह रहा है कि ग्रीन जितने भी ट्रांजिशन है ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड,
राइट, दैट विल बी इजी अगर जो ऑथर बोल रहा है वैसा करते हैं, राइट, इसलिए उसने सोलर एनर्जी वाला एग्जांपल दिया है, राइट. सो दिस इज आल्सो करेक्ट कि अगर सेम थिंग वी विल फॉलो इन द अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट, देन देयर विल बी easy green transition. So this is also correct. So both assumptions are correct. So the answer will be option C, both first and second. Okay. So I hope ये आपको समझ आ गया होगा, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया, right? Now let's see the next passage from the 2025 paper of CSET, right? So this is the passage, and on this passage there are two questions being asked, right? So what we will do, we will read the passage and we will try to understand it. Okay. देखो अगर पैसेज एक बार समझ में आ गया देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, राइट. नाउ ईच स्टेट इन इंडिया, सो दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, एंड इन इंडिया दे आर टॉकिंग अबाउट ईच स्टेट, ओके, फेसेस ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ challenges regarding the impact of warming, right? So each state, right, what they are facing the challenge. So what is the challenge? Challenge is regarding impact of warming, related to warming, right? But also offer its own set of opportunity for reducing emission depending on its natural resource, right? तो पहले ये लाइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक, right? So एक तो हमने बोल दिया कि जो स्टेट है, right, they have a distinct set of challenge, right? So they have distinct set of challenge है. Similarly they also offer opportunity, right? So what is the opportunity? Challenges regarding warming आ गया, right? Opportunity for reducing emission, right? Opportunity में क्या है कि reduce करना है क्या, emission, right? Depending on its natural resources, क्योंकि हर स्टेट के पास अपने अलग natural resource होंगे, right? तो इतना समझ में आ गया, डायग्राम भी बना दिया, right? Now for example, now they are giving the example. Coastal state need to take action to protect their shore, right, from sea level rise, districts that are drier need to prepare for variable monsoon precipitation, right? Himalayan region have their own unique challenge. Himalayan region की बात कर रहा है, they have their own unique challenge, and selected part of peninsular India and offshore area offer great opportunity आ गई है यहाँ पे for harnessing wind power. कहाँ पे? peninsular India में और offshore areas में, right? So what they, in this, what the author is saying, the opportunity they are talking about, right? Harnessing wind power. These various aspect, right, challenges, right, and the opportunity need to be considered for developing clear and sustainable goal for the future, right? So ये सारे aspect consider करने हैं to develop a clear and sustainable goal for the future, right? समझ में आ गया क्या हो रहा है, right? Each state है, उनके अलग अलग challenges हैं and opportunity provide करा रहे हैं regarding emission, and the challenges are regarding the impact of warming, right? So coastal area के बारे में बोला उन्होंने, right, कि what they have to do, and जो drier district है, right, so what they have to do regarding the monsoon precipitation, Himalayan region के unique challenges हैं, peninsular India और offshore, वो opportunity बताई उनकी that they can harness wind power. Now let's see the question. Which one of the following statement best reflect the most logical, rational and pragmatic message conveyed by the author? So what is the message conveyed by the author? Okay. The mitigation and adaptation strategy to tackle the climate change is essentially the responsibility of each state, right? ये किसकी responsibility है? ये first वाला क्या बोल रहा है option? That this is the responsibility of each state, right? वो state की बोल रहा है responsibility, right? So क्या ये सही है? What do you think? Is this correct or not? क्या लगता है आपको? देखो पैसेज में ऐसा नहीं बोला है कि दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट और सेंटर, राइट, पर यहां पे ये बोल रहा है इसेंशियली. सो ये इसेंशियली इसको क्या बना रहा है? इसको रिजिड बना रहा है, इसको एक्सट्रीम बना रहा है, राइट, कि दिस इज द इसेंशियली द स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसेंशियली, है ना, सेंटर की नहीं है, राइट. पैसेज में ऐसा कोई डिस्कस भी नहीं किया हुआ है. सो दैट्स व्हाई दिस विल बी रॉन्ग. ओके,
Now, second, India is too diverse to implement any effective strategy or program to address tackle the climate change. ये बोला है इंडिया बहुत डाइवर्स है, तो ऐसा कोई प्लान है ना बना ही नहीं सकते. दिस इज नेगेटिव टोन, राइट. पैसेज ऐसा नहीं बोल रहा है, पैसेज बोल रहा है कि आपको ये जो है चीजें कंसीडर करनी है, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. सेकंड ऑल्सो. नाउ थर्ड, it is basically the responsibility of the union government. Again, he is saying basically. Here he was saying essentially. यहाँ पे बोल रहा है basically the response की यूनियन गवर्नमेंट की responsibility है to implement the climate action plan and ensure net zero emission. Right. So that's why ये basically की वजह से ये भी गलत हो जाएगा, और ऐसा यूनियन की है responsibility या स्टेट की है ऐसा पैसेज में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है ना, कोई हिंट नहीं दिया गया है, राइट. Now, fourth, India need to formulate effective climate change mitigation and adaptation strategy at state, regional level, right? So this is correct. क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि हर स्टेट के अपना है, तो one size fit for all अप्लाई नहीं होगा, राइट. तो यहाँ पे बोला है कि स्टेट लेवल पे होगा तो बेटर है, राइट. So this is correct. India need to formulate mitigation adaptation strategy at the state, regional level पे होना चाहिए, right? So this is the मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, है ना, कि हर स्टेट का अलग अलग है, तो स्टेट लेवल पे होगा, दैट विल बी गुड. पर यहाँ पे भी स्टेट था, पर यहाँ पे हमने इसको क्यों कर दिया, यहाँ पे क्योंकि आ गया इसेंशियली द रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. ये एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया, इसलिए हमने इसको नहीं कंसीडर किया, राइट. यहाँ पे ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. आई होप ये समझ आ गया होगा. नाउ अब सेम पैसेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं. दिस वन, राइट. सो इन दिस we have to find the assumption. So what is the assumptions, right? Assumptions क्या क्या है, फर्स्ट देखते हैं. ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी, राइट. तो ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन जो है, जैसे वहां पे एग्जांपल भी दिया है विंड एनर्जी, राइट. सो दैट इज ए ग्रीन एनर्जी, राइट, विंड एनर्जी. सो दैट कैन बी लिंक, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना. ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, अपॉर्चुनिटी है. ऑथर दोनों चीज की बात कर रहे हैं, राइट. वो बात क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी की भी बात कर रहा है, चैलेंज की भी बात कर रहे हैं, राइट. सो दिस स्टेटमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी, राइट. ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू और इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी. सो दिस इज करेक्ट, राइट. तो ये सही है ना, क्योंकि जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन की स्ट्रेटेजी होंगी उससे हम लिंक कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी को. वैसे ही करना है, उसने वही एग्जाम्पल भी दिए, राइट. नाउ सेकंड, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर. देखो जब भी ऐसा वर्ड आता है ना, लेस मोर, राइट, तो आपको ऐसा अंडरलाइन करना है ना. मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन, राइट. ये बोला क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कहां पे ज्यादा है, कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन में. पैसेज ने ऐसा कुछ बोला, पैसेज ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कहां पे लेस है कहां पे मोर, राइट. उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला ईच स्टेट की बात करिए कि सबके चैलेंजेस हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट. सो ऑथर ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा है ना, अदरवाइज वो थोड़ा हिंट देता पैसेज में. सो दिस अजम्पशन इज रॉन्ग. फर्स्ट अजम्पशन सही है कि ऑथर ऐसा चाह रहा है, इसलिए वो चैलेंजेस की भी बात कर रहा है, अपॉर्चुनिटी की, राइट. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा दैट हाउ वी विल अप्रोच, है ना, और आंसर हमें कैसे मिलेंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज फ्रॉम द 2025 पेपर, राइट. सो दिस इज द पैसेज एंड ऑन दिस पैसेज देयर आर टू क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, राइट. सो first of all what we will do, we will read this passage. Okay, this is very good passage and very confusing. Question भी बहुत confusing है, option भी confusing है, right. So these are the passage where normally student make mistake in the exam, right. So let's read it. If the social inequality is the most acutely felt, right, social problem in India, right. if करके बोल रहा है ना, ऑथर ने if बोला है, तो क्या बोला है इसने, दैट सोशल जो इनइक्वालिटी है, राइट, इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम. दिस इज, ये क्या है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, राइट. इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी, राइट. नाउ ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इनसिक्योरिटी, राइट. इनसिक्योरिटी के बारे में बोल रहा है, मोर देन पॉवर्टी, है ना. ये मोर देन पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है. क्या है मोर देन पॉवर्टी, इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट. इनइक्वालिटी क्या हो गई, दिस इज सॉरी इनसिक्योरिटी, राइट. दिस इनसिक्योरिटी इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट. नाउ यहां तक समझ में आ गया. देखो पहली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट, टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, कि ऑथर इज टॉकिंग अबाउट सोशल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. देयर आर टू डिफरेंट थिंग. ओके, ये चीज यहां पे समझनी है इस फर्स्ट लाइन से. ओके, नाउ beside those
below the official poverty line, right? Even those just over the poverty line are subject to multiple economic insecurity of various kind, right? ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? ये बोलना चाह रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिसाइड्स दोज बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, इवन दोज जो ऊपर है पॉवर्टी लाइन के, राइट, जो नीचे है और जो ऊपर है पॉवर्टी लाइन के, दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू मल्टीपल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, राइट? उनमें भी इज सिक्योरिटीज है, इनसिक्योरिटीज, राइट, ऑफ वेरियस काइंड। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्रैकेट्स में, ड्यू टू वेल्थ, हेल्थ रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशन, जॉब रिलेटेड अनसर्टेनिटी, राइट? नाउ मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एक्चुअली इंटेंडेड टूवर्ड्स मिटिगेटिंग दीज इनसिक्योरिटी, है ना? बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो इनसिक्योरिटी को मिटिगेट करने के लिए बनाई गई है, राइट? आई थिंक ये समझ में आ गया। इतना ही है, बहुत छोटा सा है पैसेज, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस में ऑथर एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है, राइट? नाउ अब क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। So these are the question. So which one of the following statement best reflect the critical message? What is the message conveyed by the passage? First देखते हैं, India's political executive should be aware that poverty and social inequality and the consequent, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज द मेन सोशल प्रॉब्लम, राइट? आपने देखा यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कंबाइन कर दिया सारे इश्यूज को, राइट? वहां पे वो दो इश्यूज की बात कर रहा था, राइट? सोशल प्रॉब्लम है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, आप देखो, सोशल इनइक्वालिटी को रीजन बता रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो रहा है, एंड द कॉन्सिक्वेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है, और ये क्या है, ये मेन सोशल प्रॉब्लम है, राइट? तो आप देख रहे हो कितनी जगह यहाँ पे ये सोशल प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी आ गया, राइट? सो ये कंफ्यूज कर रहा है पूरा, है ना? और ये इसको रीजन बता रहा है, वो उसका रीजन नहीं है, राइट? देयर आर टू प्रॉब्लम्स, है ना? जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी था, देयर आर सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम में सोशल इनइक्वालिटी आ रहा है, राइट? और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसमें इनसिक्योरिटी आ रहा है, राइट? तो इनसिक्योरिटी का रीजन पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी नहीं है, राइट? जैसा यहाँ पे दिया है, कॉन्सिक्वेंस से पता लगता है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग। Now, second, in India, poverty is the primary reason for social inequality and insecurity. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इनसिक्योरिटी और जो सोशल इनइक्वालिटी आ रही है किसकी वजह से आ रही है, पॉवर्टी की वजह से आ रही है। पर ऑथर ने डायरेक्टली बोला है कि इनसिक्योरिटी किसमें, जो पुअर नहीं है ना, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है ना, उनमें भी है ना? बट ये क्या बोल रहा है कि पॉवर्टी की वजह से आ रही है, सो दिस इज रॉन्ग, है ना? जस्ट रिवर्स बोल रहा है, राइट? नाउ ऑप्शन सी देखते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ऑप्शन बनाया गया, मतलब पैसेज बहुत स्मॉल था, छोटा था, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे, ऑप्शंस को, सो वो बहुत ट्रिकी है, राइट? नाउ सी, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर सो इंट्रिकेटली लिंक्ड दैट दे पोज एन अनमैनेजेबल क्राइसिस फॉर इंडिया, राइट? क्या ऑथर ने कहीं पे ऐसे बोला है कि ये चीजें कोई क्राइसिस पैदा कर रही है ना, और वो भी मैनेजेबल नहीं है, अनमैनेजेबल है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, है ना? ऐसा ऑथर ने कहीं पे बात नहीं करी है, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ फोर देखते हैं, इनसिक्योरिटी more than poverty, right, is the main economic issue, right? तो ये तो डायरेक्टली बोला हुआ है, फर्स्ट लाइन में ही बोला हुआ है, राइट? more than poverty, देखो ये आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे है ना, हमने बोला भी था और यहाँ पे लिखा भी है, इनसिक्योरिटी more than poverty, right, is the main economic issue, right? तो वो तो डायरेक्टली ऑथर ने बोला ही है, राइट? फर्स्ट लाइन में ही बोला है, that government policy must address, right? so this is correct, क्योंकि वो भी बोल रहा है कि गवर्नमेंट इंटेंड टू ओवरकम दीज इनसिक्योरिटी, है ना? तो यहां पे बोला है गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट एड्रेस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, राइट, फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैसेज पे बेस्ड है, राइट? सो यहां पे हमें अजम्पशंस बतानी है, राइट? अजम्पशंस क्या क्या हो सकती है? सो अजम्पशंस क्या क्या होती है? अजम्पशन होती है जिसपे ऑथर ने, assumptions are not given, right, not stated by the author, but author उन पे बिलीव करता है और उसी के बेसिस पे उसने पैसेज लिखा है, राइट? तो ऐसा अगर assumptions गलत हो जाएगी, राइट, तो वो पैसेज भी गलत हो जाएगा, राइट? तो assumption सही होनी चाहिए, पैसेज से मैच करनी चाहिए, राइट? नाउ फर्स्ट देखते हैं, people above the poverty line also are prone to suffer from anxiety about economic insecurity, राइट? तो ये सही है, क्योंकि उसने बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन से अबव हैं उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी है, दे आल्सो सफर
राइट, फ्रॉम इनसिक्योरिटी, राइट। अब यहाँ पे देखो एंजाइटी आ रहा है, तो एंजाइटी की वजह से ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट और आपको लगेगा कि एंजाइटी की वजह से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने, अगर आप देखो एक्यूटली फेल्ट बोला है, एक्यूटली फेल्ट में मतलब आप फील कर रहे हो, जब आप फील कर रहे हो तो वो एंजाइटी आएगी आपको, राइट। सो दिस इज ऑब्वियस, राइट। तो एंजाइटी यहाँ पे सही यूज हुआ है, गलत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, राइट। नाउ सेकंड, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री, राइट। कि अगर पॉवर्टी हट जाएगी देन देयर विल बी ए पीस, राइट। बट उसने बोला है कि व्हाट इज मोस्ट एक्यूटली फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कौन सी, इनसिक्योरिटी। अगर पॉवर्टी हट भी जाएगी, राइट, तो इनसिक्योरिटी तो रहेगी एंड दैट इज एक्यूटली फेल्ट, राइट। सो देयर कैन नॉट बी पीस, राइट। और सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री, सोशल इक्वालिटी और पॉवर्टी को लिंक कहीं पे पैसेज ने किया नहीं है कि अगर पॉवर्टी हट जाएगी तो सोशल इक्वालिटी आ जाएगी, पैसेज में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। थोड़ा ऑप्शंस ट्रिकी है क्योंकि इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, राइट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, राइट। सो देयर आर सो मेनी टर्म्स, सो दैट्स व्हाई this passage is becoming little tricky. Okay, now let's see the next passage. So this is the passage and on this passage there are two questions being asked, right? दो क्वेश्चन पूछे गए, right? So first of all let's read the passage. One of the dismal reality of the agricultural sector, so they are talking about agricultural sector, right? In independent India has been that it never experienced, right, what, high growth phase, unlike the non-agriculture economy. So in non-agriculture we are seeing the high growth phase, but in the agriculture we are not seeing the high growth, right. The highest decadal growth for agriculture has been just 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing a sprint in decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relative stagnation thereafter. This is in sharp contrast to non-agriculture growth, which consistently increase. Non-agriculture में consistently increasing, right, from 1980s to 2000, right. तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा है कि वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है और नॉन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहां पे ग्रोथ हो रही है, राइट। बस दिस इज द मेन थिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement best reflect the corollary to the above passage? So what is the corollary? Corollary is the that given this passage, what is the conclusion, what we can conclude from that passage, right, or that given information. Okay, now first देखते हैं, the benefit of economic reform percolate down more slowly to the agricultural sector than in the other sector of the economy, right. तो बोल रहा है कि जो बेनिफिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म के, दैट गो डाउन स्लोली इन एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पैसेज क्या बोल रहा है, पैसेज बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट, बट अदर सेक्टर्स में देयर इज अ ग्रोथ, राइट। तो ये सही लग रहा है ऑप्शन। देखते हैं कोई और ऑप्शन भी हो सकता है क्या, अदरवाइज दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज नॉट एज यूजफुल एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी। देखो पैसेज में ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड बात नहीं करी है, राइट। 1980s की बात कर रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1970s में हुआ था, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। और ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है क्या, वी कैन कंक्लूड दैट, ऐसा भी नहीं है, राइट। नाउ थर्ड ऑप्शन देखो, इंडिया लैग बिहाइंड अदर कंट्रीज इन अडेप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग, राइट। तो कहीं पे ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं दिया है कि इंडिया में अदर कंट्रीज के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई है, राइट, या मैकेनाइज नहीं हुई है, राइट। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। नाउ लास्ट ऑप्शन देखते हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्टेड इन द स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। तो ये बोल रहा है स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों है, बिकॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, राइट। तो बोल रहा है कि ग्रोथ नहीं हुई है एग्रीकल्चर हमारा 1980 से लेके 2000 तक, है ना, कोई ग्रोथ नहीं हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में,
सो वी हैव ए स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। बट ये क्या बोल रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है इसकी वजह से है, तो उसका रीजन एज सच पैसेज में नहीं दिया है, सो वी कैन नॉट कंक्लूड दिस, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट, क्योंकि दिस इज शोइंग व्हाट द पैसेज इज सेइंग। पैसेज बोल रहा है कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ भी यही बोल रहा है कि उसमें स्लो पर्कुलेट होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म, राइट, पर अदर सेक्टर में फास्ट हो रहे हैं, इसलिए वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है और वहां पे नहीं हो रही, राइट। सो दिस इज द लॉजिकल वन, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Two question is being asked on this passage, right? The second question is about the assumption, right? So, with reference to the passage, the following assumptions has been made. The growing divergence हो रहा है किसमें? Between the fortune of the agriculture and non-agriculture economy in India could have been reduced, right? उनके बीच में जो divergence हो रहा है, क्योंकि वो grow कर रहा है और वो grow नहीं कर रहा है ना? Agriculture grow नहीं कर रहा है, but non-agriculture things are growing, right? So that's the divergence. इट इज रिड्यूस और कंटेन बाई, ये कैसे रिड्यूस किया जा सकता है इन दोनों में डाइवर्जेंस? फर्स्ट, अडेप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एंड वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग। हाँ, अगर ऐसा कुछ करेंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग एंड कमर्शियल क्रॉप का लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, सो दिस विल रिड्यूस, इट विल इंक्रीज द ग्रोथ, राइट। सो डाइवर्जेंस विल बी लेस, सो दिस इज करेक्ट। नाउ सेकंड, प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस, राइट, फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड heavily subsidizing seed, fertilizer, electricity and farm machinery at par with developed countries, right। तो इस ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है कि अगर हम फ्री इंश्योरेंस और सारी चीजें फ्री दे रहे हैं तो फार्मर्स के पास पैसा आ जाएगा, राइट, मॉनिटरी आ जाएगा, बट क्या उससे ग्रोथ होगी? क्या ग्रोथ कैसे होगी, राइट। सो दिस, ये वाला जो assumption है सेकंड, दिस इज नॉट ग्रोथ रिलेटेड, कि ग्रोथ कैसे होगी, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ लानी है, राइट, बिकॉज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ ऑलरेडी हो रही है, राइट। तो उनका जो डिफरेंस है उसको कम करना है, तो पर ये सारी चीजें करके ग्रोथ नहीं होगी, राइट। हो सकता है जितना पैसा बच रहा है ना, उससे क्या होगा कि फार्मर यूज ही नहीं कर रहा है, राइट। सो फर्स्ट जो है यहाँ पे, ये पहला assumption करेक्ट है, सेकंड इज नॉट करेक्ट, राइट। सो द आंसर विल बी ओनली फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स सी दिस पैसेज। On this passage there are two questions is being asked. One is about the message implied by the passage and the second is about the assumption, right? So let's read the passage. In our country, right, so they are talking about our country, handlooms के बारे में बात कर रहा है, are equated with a culture that ensure a continuity of tradition, right? So handloom को किसके साथ equate किया गया है? With a culture that ensure continuity of tradition. This idea has become part of the public policy framing and provide a legitimate basis for the state to support the sector, right? So this idea, ये क्या बन गया? This idea, it become a part of public policy framing, right? And government इसको support कर रही है ना? Legitimate basis बन गया, right? But the notion of tradition, right? The notion of tradition as a single linear entity is being strongly contested today, right? So this idea is being contested today. The narrative dominant in defining culture tradition in a particular way are seen to have emerged as the identity and history of large section, right? Identities and history of large section. तो क्या बोल रहा है कि जो नैरेटिव है कल्चर और ट्रेडिशन को डिफाइन करने का, राइट, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज सीन एज डिफाइनिंग द आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री ऑफ लार्ज सेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? लाइक हु आर डोमिनेंट, राइट। सो दिस इज डिफाइनिंग और बिकमिंग द आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल हु आर डोमिनेंट, राइट, लार्ज सेक्शन। द डिस्काउंटेड एंड एट टाइम फोर्सिबली stifled identities are fighting for their rightful place in history, right? The discounted and at time forcibly stifled, right? तो discounted का मतलब होता है कि नजरअंदाज करा जाना, right? Who are not being considered, right? And forcibly stifled मतलब किसी को suppress करना, right? So जो लोग हैं जिनको नजरअंदाज किया गया और दबाया गया है, these identity are fighting for their rightful place in history. उनको they are fighting for their rightful place, right? Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry,
it is not surprising that a large section of our population choose to ignore it. So this is the reason that जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो इसको इग्नोर करती है, राइट क्योंकि वो सोचते हैं कि दे आर प्रमोटिंग द आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री ऑफ द किन लोगों की बता रहे हैं, जो पहले जो रिच पीपल थे, है ना, जो डोमिनेंट थे उनकी, राइट और वही आइडिया आज डोमिनेटिंग है, वही उसने बोला दिस नैरेटिव इज डोमिनेंट, राइट उसी तरीके से कल्चर को देखा गया अभी, राइट नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि पैसेज क्या बोल रहा है, राइट अब क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन है इस पे पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन, yes this is the first question. Which one of the following statement best reflect the most logical rational message conveyed by the author, right? First, we need to free the handloom industry को from the limited narrative linked to preserving culture heritage, right? तो ऑथर यही बोल रहा है एक तरीके से कि क्या इशू है ना, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि we need to free, कि हमें फ्री कर देना चाहिए हैंडलूम इंडस्ट्री को लिमिटेड नैरेटिव से, that is linked to preserving culture heritage, right? So this is correct, है ना, ये बता रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, राइट क्योंकि ऑथर ने बताया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, राइट अब देखते हैं सेकंड देखते हैं, राइट इसको अभी हम टिक मार्क नहीं कर रहे हैं सही, क्योंकि ये सही हो सकता है क्योंकि ये उसके आगे का बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट ये कुछ प्रेस्क्राइब कर रहा है दिस सॉल्यूशन। नाउ सेकंड, continued state support to the handloom industry ensure the preservation of some of our glorious art form and old tradition, right ये बोल रहा है कि स्टेट का सपोर्ट रहना चाहिए क्योंकि इससे प्रिजर्व हो रहा है हमारा ग्लोरियस फॉर्म ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन, राइट सो दिस कैन नॉट बी आंसर, ऑथर ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहा है, राइट और जो प्रॉब्लम ऑथर बता रहा है उसके बारे में भी इसमें कोई मेंशन नहीं है, राइट नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं। हाउस होल्ड यूनिट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज, राइट हाउस होल्ड यूनिट को मॉडर्नाइज करना चाहिए एंड मेड एन इकोनॉमिकली वायबल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना चाहिए, राइट सो ऐसा ऑथर ने नहीं बोला है और इससे जो ऑथर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट नाउ फोर्थ, हैंडलूम प्रोडक्ट्स नीड टू बी कन्वर्टेड टू मशीन मेड डिजाइनर प्रोडक्ट सो एज टू मेक देम मोर पॉपुलर, राइट ताकि उनको और पॉपुलर बनाया जा सके, राइट सो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि मशीन मेड बनाना चाहिए और जो प्रॉब्लम ऑथर ने डिस्कस करी है वो भी सॉल्यूशन से खत्म नहीं होगी, राइट सो द आंसर विल बी ए, राइट दिस ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग द करेक्ट सॉल्यूशन, राइट कि उस जो लिमिटेड नैरेटिव्स है, डोमिनेंट नैरेटिव है, उससे ओवरकम करना है, राइट सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द अजम्पशन। So what is the assumption? Now first देखते हैं, there is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector, right? तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि स्टेट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, राइट क्योंकि ऑथर का वो कंसर्न नहीं है, ऑथर प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है कि व्हाट द प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग, राइट स्टेट सपोर्ट के बारे में मेंशन किया है उसने, राइट पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑथर ये चाह रहा है कि स्टेट सपोर्ट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, राइट क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन एनी मैनर, तो बहुत एक्सट्रीम है, so that's why this is wrong, right? Now second, handloom products are no longer appealing and attractive in the rapidly changing modern world. modern world की बारे में बात नहीं करी है उसने, right? first of all, second उसने ये भी नहीं बोला है कि they are appealing or not, right? attractive है या नहीं है इस बारे में भी बात नहीं करी है, so this cannot be the assumption of the author, right? so the answer will be option D, neither first nor second, right? I hope ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। Now let's see the next passage. On this passage, there are two questions being asked, right? So first of all, we will read the passage. We will try to understand the passage. Then we will see the question. In our country, regrettably, मतलब regret कर रहा है author, है ना? मतलब जो वो बोलेगा, उस चीज पे regret कर रहा है. Teaching and learning for the examination have been our forte, but the new demand of society and the future of work require critical and independent thinking, right? तो ऑथर किस पे रिग्रेट कर रहा है? टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द एग्जामिनेशन पे, राइट बट न्यू डिमांड क्या है, राइट बट न्यू डिमांड ऑफ सोसाइटी एंड द फ्यूचर वर्क क्या रिक्वायर कर रहा है? क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लर्निंग थ्रू डूइंग, आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑन द सेम इशू,
using evidence for building argument and reflecting an articulation. Right? So ऑथर बता रहा है कि अभी तक हमारा क्या एग्जाम ओरिएंटेड था, पर वो चाह रहा है कि न्यू डिमांड के हिसाब से ये सब चीजें होनी चाहिए. ठीक है. नाउ हायर एजुकेशन शुड नॉट either be mere servant of the government policy or a passive respondent to public mood. तो हायर एजुकेशन को बता रहा है वो कैसा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ए mere servant of the government policy. Right? Now higher learning is all about how to think rather than what to think. Teaching has to be reinvented. Right? So this is the conclusion or the final point of the author, that teaching has to be reinvented. Teaching को दोबारा से reinvent होना चाहिए. Right? Now let's see the question. So this is the question. The question is about the central idea conveyed by the passage. Right? So let's see the first option. India does not have. So he does not have बोल रहा है, extreme word use कर रहा है, enough resources for promoting quality education in the university. So this is wrong. ऐसा author ने mention भी नहीं किया है, and this is extreme. Right? Now second, the institution of higher learning in the country should not be under the control of the government. Right? ये बोला है कि हायर एजुकेशन वाले गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए. ऑथर ने ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया है. राइट? सो दिस इज रॉन्ग. हायर एजुकेशन के बारे में बात करी है. राइट? उसने बोला है कि हायर एजुकेशन शुड नॉट बी मीर. राइट? कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि दे आर, देखो क्या बोला है, एक बार दिखाता हूं आपको. राइट? यहाँ पे राइट, शुड नॉट आइदर बी ए मीर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे शुड नॉट बी अंडर कंट्रोल. राइट? सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही वो करेंगे. ठीक है? और यहाँ पे ये बात कर रहा है कंट्रोल की. राइट? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ क्लासरूम अप्रोच टू हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे. ये बोला है क्लासरूम अप्रोच होनी नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ ऑथर ने कहीं पे मेंशन नहीं किया. राइट? नाउ फोर्थ, क्लासरूम नीड टू बी रीइमेजिन एंड टीचिंग नीड टू बी रीइन्वेंटेड. दिस लाइन इज डायरेक्ट, टीचिंग नीड टू बी रीइन्वेंटेड. राइट? सो क्लासरूम के बारे में ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा था. राइट? और उसने रीइमेजिन, अगर आप सोचो तो ऑथर ने काफी ऑप्शंस बताएंगे कैसी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. राइट? तो वो सारी चीजें उसने बताई है कि क्या क्या होना चाहिए क्लासरूम के बारे में. पहले पैसेज में जो स्टार्टिंग की फ्यू लाइंस है, दीज आर ऑल अबाउट द क्लासरूम. राइट? कि क्या क्या होना चाहिए क्लासरूम में, है ना. एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, क्वेश्चंस, आर्गुमेंटेशन, आर्टिकुलेशन. राइट? सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. राइट? नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम पैसेज. So the second question is about the assumptions. Right? Assumption have been made. Now first assumption देखते हैं. Higher education is a constantly evolving subject that need to align toward new development in all sphere of society. Right? Assumption क्या है? अगर सपोज करो ये assumption नहीं है. Right? Okay? तो ये क्या हो गया? Higher education not, it should not इन्वॉल्व कॉन्स्टेंटली. राइट? तो ऑथर क्या चाह रहा है? वो तो चाह रहा है कि इवॉल्व हो, तो इसका मतलब ये सही है. राइट? ओके, दैट नीड टू बी अलाइन टुवर्ड न्यू डेवलपमेंट. और ऑथर ने ये भी बोला है कि जो न्यू डिमांड्स आ रही हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, न्यू डिमांड एंड फ्यूचर काइंड ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग. सो दिस अजम्पशन इज राइट, क्योंकि अगर इसका हम निगेट कर रहे हैं इस अजम्पशन को, तो हमारा पैसेज फेल हो रहा है. राइट? तो इट मींस दिस इज करेक्ट. राइट? सेकंड, इन अवर कंट्री सफिशिएंट फंड आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन. ऐसा कहीं पे मेंशन भी नहीं है, ऑथर ने कोई डिस्कस भी नहीं किया इस बारे में, फंड के बारे में. राइट? सो दिस इज रॉन्ग. राइट? ऐसा कोई अजम्पशन ऑथर का नहीं है. सो द आंसर विल बी ओनली फर्स्ट. राइट? ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कि कैसे सॉल्व किया और आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में. राइट? नाउ लेट्स सी दिस पैसेज. ऑन दिस पैसेज two question are being asked. Right? One is about the crux and the second question is about the assumption. Right? So in 2025 most of the passage question are like that, है ना. सब पैसेज पे दो क्वेश्चन पूछे गए. राइट? वन इज अबाउट द क्रक्स और सेंट्रल आइडिया और द मैसेज कन्वेड एंड द सेकंड इज अजम्पशन. राइट? तो अजम्पशन सब में पूछा गया. राइट? सो नाउ लेट्स रीड दिस पैसेज. इफ देयर इज इनइक्वालिटी इन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. राइट? सो द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी. किस में? इन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में इनइक्वालिटी है. देयर इज ए ग्रेटर इनइक्वालिटी. सो देयर इज ए ग्रेटर इनइक्वालिटी कहाँ है? इन द फूड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन. राइट? As society becomes wealthier, their consumption of animal product increase. Right? जैसे वेल्थ
जैसे सोसाइटी के बारे में बोला है, जैसे सोसाइटी वेल्दियर बनती है, देयर कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्रीज. दिस मीन दैट ए ग्रेटर proportion of such basic food stuff as grain and legumes that could feed humans directly is instead being converted into feed for poultry and large farm animal. Right? तो ये क्या लाइन बोल रही है? Right, this line is saying that large portion of जो basic food है, right, जैसे grains है ना, legumes है, so that is converted, वो directly feed कर सकता है human को. Okay, that could feed human directly, है ना, मतलब human उसको directly यूज कर सकता है. बट क्या कर रहे हैं अभी, उसको जो grains है और ये है legumes, उसको हम किसको दे रहे हैं? We are giving them to the animals, है ना, we are giving them feeding for poultry and large farm animal. तो ये हम किसको खिला रहे हैं अभी? हम animals को खिला रहे हैं. और human क्या खा रहा है? Human खा रहा है उन एनिमल्स को, है ना, एनिमल प्रोडक्ट्स को, राइट. येट दिस कन्वर्जन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड इनटू एनिमल फूड फॉर ह्यूमन इज फार फ्रॉम इफिशिएंट, राइट. तो क्या कन्वर्जन हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है प्लांट बेस्ड फूड इनटू एनिमल फूड, है ना. पहले प्लांट बेस्ड खा रहे थे, लेकिन अभी वेल्दी हो जाएंगे तो क्या खाएंगे? एनिमल बेस्ड, राइट. सो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, दिस इज नॉट इफिशिएंट, राइट. अब वो बता रहे कैसे. ओनली 60% ऑफ द कैलोरीज के बारे में बात कर रहा है. फैट टू chickens are recovered by us when we eat them. This conversion rate goes down, this is going down to 5 to 7% in large animal. Large animal में कितना होगा? 5 to 7%. कैलोरी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, कि 16% कैलोरी ही हम रिकवर कर पाते हैं, राइट. फिर ये बोल रहा है कि द रेट और कम हो जाता है 5 to 7% इन लार्ज एनिमल दैट आर फेड ग्रेन्स टू एड फैट एंड सम प्रोटीन बिफोर स्लॉटर, राइट. तो उनको जो लार्ज एनिमल है, उनको बिफोर उनकी स्लॉटर करने से पहले उनको ग्रेन खिलाया जाता है, सो दैट उनमें इंक्रीज हो जाए क्या? फैट एंड सम प्रोटीन, राइट, है ना, लिखा है ना, टू ऐड फैट और प्रोटीन ऐड करने के लिए उनको ग्रेन खिलाया जाता है बिफोर स्लॉटर से पहले, राइट. आई गेस समझ आ गया पैसेज. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, राइट. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पैसेज हमने बहुत आराम से पढ़ा है, सो आई होप आपको पूरा पैसेज समझ आ गया होगा, राइट. नाउ first question is about the crux of the passage, right. So first option देखते हैं. First option, there is an urgent need, so urgent need for a public policy to promote the consumption of cereal based food in wealthier society, right. तो पैसेज ने कहीं पे ऐसी कोई बात करी है, राइट. ये एक सॉल्यूशन बता रहा है ना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं करी है ऑथर ने. ऑथर सिर्फ प्रॉब्लम को बता रहा है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, राइट. तो उसने पब्लिक पॉलिसी वगैरह ऐसा कोई बात नहीं करी है, राइट. सो दिस इज रॉन्ग, राइट. वी विल नॉट कंसीडर दिस ऑप्शन, राइट. वी विल सी द नेक्स्ट ऑप्शन. एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस इफिशिएंट देन ग्रेन प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, राइट. तो इफिशियंसी की बात कर रहा है ऑथर, ये बोल ही रहा है दैट एनिमल बेस्ड फूड इज नॉट इफिशिएंट, राइट, है ना. और ग्रेन बेस्ड और इससे कंपेयर कर ही रहा है इन, है ना, प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन. ये सही है बिल्कुल, राइट. सो दिस इज करेक्ट, राइट. सो दिस कुड बी द आंसर. बट और ऑप्शंस देखते हैं. प्लांट बेस्ड प्रोटीन should replace the animal based protein in our daily diet, in our daily, हमारी डेली डाइट में ऐसा होना चाहिए, राइट. तो क्या ये सही है? क्या ये क्रक्स है कि प्लांट बेस्ड? लेकिन वो ऑथर बोल रहा है कि जैसे जैसे सोसाइटी वेल्दी हो रही है वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट. और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस द एनिमल बेस्ड प्रोटीन इन अवर डेली डाइट, राइट. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आर्गुमेंट ऑफ द ऑथर, है ना. ये क्रक्स नहीं है, राइट. तो यहाँ पे एक एडवाइस प्रोवाइड करा रहा है ना, बट जो हमारा प्रॉब्लम है ना, पैसेज प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, राइट. वो कोई एडवाइस के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, बट ये पैसेज एडवाइस दे रहा है, आगे जाके एडवाइस दे रहा है, राइट. तो ऐसा कुछ ऑथर ने मेंशन नहीं किया, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. नाउ फोर्थ, इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज इनएविटेबल इन एनी फास्ट चेंजिंग सोसाइटी, राइट. है ना. देखो पैसेज में फर्स्ट लाइन में ही उसने बोला है फूड प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में, पर ये उसका क्या क्रक्स है क्या? जैसे ये वाला पॉइंट जो है ऑप्शन बी, ये पूरा उसका क्रक्स बता रहा है. बट दिस इज करेक्ट, बट दिस कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज दिस इज नॉट सेइंग द क्रक्स, राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस, ओके. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, राइट. इस पैसेज पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अबाउट द अजम्पशन, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन. So assumptions have been made, right. So first assumption पढ़ते हैं क्या है. The food manufacturing and processing industry in every country should align with their objective and process in accordance with the changing need of the society, right.
अब देखो पैसेज में कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करी है ना, और ऑथर कोई ऐसा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है, वो सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, और यहाँ पे ये एवरी कंट्री बोल रहा है, ठीक है। और पैसेज ने बोला है कि वेल्दियर कंट्रीज में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है, राइट, पर यहाँ पे ये एवरी कंट्री बोल रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी द अजम्पशन ऑफ द ऑथर, राइट। नाउ सेकंड, वेल्दियर सोसाइटी, हाँ वेल्दी सोसाइटी के बारे में बात करिए, टेंड टू इनकर ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरीज ऑफ फूड मटेरियल ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट। सो अब ये यहाँ पे इसने क्या बोला है, इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन। इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, राइट, क्योंकि एनिमल प्लांट बेस्ड मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं और जो ह्यूमन है वो एनिमल जो प्रोडक्ट्स है उनको ईट कर रहा है, राइट। सो दिस इज इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई द लॉस ऑफ कैलोरी हो रहा है, ये तो एग्जाम्पल ही दिया है ऑथर ने, है ना। सो दिस इज करेक्ट, राइट। सो दिस अजम्पशन इज करेक्ट कि वेल्दियर सोसाइटी में क्या हो रहा है, दे आर इनकरिंग ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरीज ऑफ फूड मटेरियल ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है जैसे पैसेज में बोला, ठीक है, ये डायरेक्ट ही, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। On this passage also there are two questions is being asked. One is about the crux and the another is about the assumption, right? So let's first of all read the passage. Passage को देखते हैं पहले, ठीक है। Over the next 30 years, right? Many countries are promising to move to net zero carbon, implying that, right? अगले 30 सालों में क्या बोल रही हैं countries? They are promising to move to net zero carbon, implying that household emission will have to be cut to close to nothing. तो हाउस होल्ड एमिशन कितना हो जाना चाहिए, तब नथिंग हो जाना चाहिए, मतलब जीरो, राइट। ए लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट रिकॉन दैट एट बेस्ट, देखो रिकॉन का मतलब यहाँ पे आप इससे मीनिंग लगा सकते हैं, है ना, कि लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट रिकॉन मतलब थिंक, राइट, और बिलीव दैट एट बेस्ट हाफ द रिडक्शन माइट बी अचीव्ड, माइट बी बोल रहे हैं, राइट, कितना, हाफ द रिडक्शन माइट बी अचीव्ड थ्रू डिमांड साइड मेजर्स, राइट, कि डिमांड साइड मेजर से हम कितना अचीव कर सकते हैं, कितना, हाफ, राइट, सच एज बिहेवियरल चेंजेस बाय इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड, राइट, एंड इवन दैट वुड रिक्वायर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर इंसेंटिव, राइट। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इवन दैट इज रिक्वायर्ड दैट कंपनी एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव टू चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट, राइट, टू मेक लो कार्बन ऑप्शन चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। एक तो अवेलेबल होना चाहिए और एक चीपर होना चाहिए, राइट, राइट। वो बोल रहा है ये हाफ के लिए भी क्या चाहिए, कंपनीज एंड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट सप्लाई साइड में वो क्या चाहिए, उनको सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट, सो दैट जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी है वो चीपर अवेलेबल हो जाए, राइट, ठीक है। दिस इज अबाउट द पैसेज। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दिस, सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज, राइट, यहां पे लिखा है सेंट्रल आइडिया, राइट। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन, मूविंग टू नेट जीरो कार्बन इज पॉसिबल ओनली, देखो ओनली यूज कर रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, only by the reduction is household emission, right, but उसने clearly passage ने बोला है कि household emission से केवल हम half लिखा है ना, only half we can achieve, right, so this is wrong. Now second, low carbon behavior in people can be brought about by incentivizing them, right, so low carbon behavior in people can be by incentivizing them का मतलब ये तो डायरेक्टली पैसे से किया गया, incentivizing them कैसे, कि आप लो कार्बन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेलेबल करा रहे हो, है ना, चीपर, or they are available. So this is correct, right? So this can be the answer. Now let's see the option C. Cheaper goods and services can be made available to people by using low carbon technology, right? अब ये बोल रहा है कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करेंगे, चीपर गुड्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। पर पैसेज में ऑथर ने क्या बोला है कि इन गवर्नमेंट और जो कंपनीज हैं, राइट, वो क्या करेंगी, वो चीप क्या प्रोवाइड करेंगी, लो कार्बन प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये जस्ट रिवर्स बोल रहा है, राइट, दिस पैसेज का ये जस्ट रिवर्स बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करेंगे तो उससे अपने को क्या मिलेगा, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, राइट। और पैसेज में क्या बोल रहा है
कि इंसेंटिव देके क्या होगा, लोगों को क्या मिलना चाहिए, चीपर लो कार्बन प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, राइट। तो ये उसका जस्ट अपोजिट बोला है जो पैसेज में बोला है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। नाउ फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज, राइट। तो जो इंडस्ट्रीज हैं जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, राइट, उनको सब्सिडी देनी चाहिए। तो पैसेज में कहीं इंडस्ट्री के बारे में बात करी है नहीं, राइट, उनको सब्सिडी देनी चाहिए, राइट। उसने इंसेंटिव्स की बात करी है, राइट, पैसेज में के इंसेंटिव देने चाहिए, राइट, गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को, सो दैट जो प्रोडक्ट है वो चीप अवेलेबल हो लोगों के पास, ठीक है। पर देखो पैसेज में क्या लिखा है, 1 सेकेंड, लेट मी टेल यू डायरेक्टली, राइट। उसने बोला एंड इवन दैट वुड रिक्वायर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर इंसेंटिव टू चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो किस टाइप का इंसेंटिव देना चाहिए, चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट लो कार्बन वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। तो ये बहुत नैरो बात कर रहा है ना, दिस इज नॉट द क्रक्स, ये मेन पॉइंट नहीं है, राइट। और ये बोला है सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए दैट शुड यूज लो कार्बन, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। नाउ इसी पैसेज पे एक और क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट द अजम्पशन, सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन आल्सो। So yes, this is the question. So we have to find assumptions which are valid, right? Now, first assumption क्या दिया है, supply side investment in companies can result, supply side की बात कर रहा है, right? Government and company का जब बात करता है पैसेज में, right? देखो यहाँ पे companies and government to provide more incentive to change through supply side, right? Supply side investment in companies can result in low carbon behavior in people. So ये सही बोल रहा है ना, ऑथर ने ऐसा बोला है, राइट, कि सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज की वजह से क्या होगा कि लो कार्बन जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल बी अवेलेबल एंड चीपर, सो विच विल चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल, सो दिस इज करेक्ट। नाउ सेकंड, पीपल आर नॉट कैपेबल, अब देखो ये एक्सट्रीम यूज कर रहा है, दैट पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट द, बिना गवर्नमेंट के, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज, राइट। तो बोल रहा है कि लोग कर ही नहीं पाएंगे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज कर रहा है, ऐसा कोई पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है, राइट। क्योंकि देखो ऑथर ने देखो यहाँ पे क्या बोला है, दैट हाफ द रिडक्शन माइट बी अचीव थ्रू डिमांड साइड मेजर, डिमांड साइड मेजर से हम हाफ कर सकते हैं अचीव, राइट। पर वो बोल रहा है हाफ कर सकते हैं, पर उसके लिए अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा देन दैट विल बी बेटर। तो यहाँ पे लिखा है एंड इवन दैट वुड रिक्वायर, चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं भी करेगी तब भी लोग कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट दे आर नॉट कैपेबल, दे आर कैपेबल, राइट, दे आर कैपेबल, राइट। बात कैपेबिलिटी की नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई दिस विल बी रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ओनली 1, राइट। अब प्रोडक्ट कॉस्टली है, राइट, मार्केट में, तो लोग ले सकते हैं, राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट कैपेबल। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज फ्रॉम द 2025 पेपर। ऑन दिस पैसेज देयर आर 2 क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। 2025 के पेपर में नॉर्मली फॉर ईच पैसेज दे हैव गिवन 2 क्वेश्चन, वन इज अबाउट द मैसेज और द क्रक्स और द सेंट्रल आइडिया, सेकंड इज अबाउट द अजम्पशन, राइट। तो ज्यादातर पैसेजेस में, राइट, 90% पैसेज में 2 क्वेश्चन पूछे गए हर पैसेज पे, राइट। सो नाउ लेट्स रीड द पैसेज। In only 50 years, the world's consumption of raw material, right? So they are talking about the consumption of raw material. World की बात कर रहा है, right? Raw material has nearly quadrupled. Quadrupled का मतलब होता है 4 गुना हो गया, right? 4 times. Okay, quadruple to more than 100 billion tons, right? So पिछले 50 सालों में क्या हुआ है, the consumption of raw material in the world has become 4 times and it has reached to more than 100 billion tons. Now less than 9% of this is used, right?
How much is used? Less than 9%. Now, batteries of old vehicle contain materials such as lithium, cobalt, magnesium and nickel that are pricey and can be hard to obtain. Right? So battery की बात कर रहा है old vehicles की. So what they are containing? They are containing these things which are pricey and hard to obtain. Supply chain are long. Right, now they are talking about supply chain are long and complicated. Buyers' risks are being aggravated by their suppliers' poor environmental and labor standard. Okay, now reusing material makes sense. So now अगर आप देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं बता रहा है, यहाँ पे this is the opinion of the author of this passage, right? So what they are saying, reusing material makes sense. Once battery reach the end of their lives, they should go back to a factory where their ingredient can be recovered and put into new batteries, right? So the passage is talking about batteries and final में author क्या suggest कर रहा है कि जब batteries की life खत्म हो जाती है, right, they should go back to the factory and उनके ingredient को recover करना चाहिए and that should be reused and put into new batteries. Okay, I guess passage समझ आ गया, right? Now let's see the question. So now this is the first question, right? So the question is about the message conveyed by the passage. So what is the message conveyed by the passage, right? Now green economy is not possible, right? So first option क्या है? That green economy is not possible, right? तो ये extreme word का use हो रहा है, not possible without reusing critical minerals, right? तो बोला ग्रीन इकोनॉमी पॉसिबल ही नहीं है विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स, है ना. सो दिस इज यूजिंग एक्सट्रीम स्टेटमेंट और ऐसा ऑथर ने कहीं बोला नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, राइट. नाउ सेकंड, एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड अडेप्ट द रीयूज ऑफ मटेरियल रिसोर्स इमीडिएटली, राइट. तो इमीडिएटली का मतलब कि एकदम अर्जेंटली वी नीड टू एक्ट, राइट. एंड ये दिस इज सेइंग एवरी सेक्टर, राइट. सो अगेन बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड्स को यहाँ पे यूज किया है, एवरी यूज किया है, इमीडिएटली यूज किया है, राइट. तो ऑथर ने ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया है ना बोला है, राइट. सो दिस इज रॉन्ग, राइट, बिकॉज द पैसेज इज आस्किंग अबाउट द मैसेज. तो ऑथर ने ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया, राइट. नाउ थर्ड, सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट. तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, जहां पे रीयूज होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर इकोनॉमी, राइट. कि आप वो बैटरी के लिए भी अगर आप देखो, ऑथर यही सजेस्ट कर रहा है कि बैटरी जब ओल्ड हो जाती है ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स है उनको रिकवर करना चाहिए एंड देन इट शुड बी रीयूज, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर इकोनॉमी, देन न्यू बैटरी विल गेट फॉर्म, राइट. सो दिस इज करेक्ट. सो ऑथर ये बोलना चाह रहा है दैट सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ. सस्टेनेबल ग्रोथ क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने बोला एक तो ये प्राइस ही है एंड दीज आर क्रिटिकल मिनरल्स दैट दे आर हार्ड टू ऑब्टेन, ऑथर ने मेंशन किया मैसेज में, राइट. तो द आंसर विल बी दिस ऑप्शन सी. ऑप्शन डी को भी एक बार देखते हैं. सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्स, ये सही है. सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्स is the only option. So the author is saying only option, this option is saying only option, right, for some industry for their survival. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो रहा है सिर्फ only की वजह से, ऐसा नहीं है, right, कि सर्कुलर इकोनॉमी इज द ओनली ऑप्शन, है ना. फॉर सम इंडस्ट्री फॉर देयर सर्वाइवल, कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है विदाउट इसके. वो सर्वाइव तो कर ही रही है मे बी करंटली, राइट, बट अगर सस्टेनेबल बनाना है इसलिए वी आर गोइंग फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. ओके, ऑप्शन डी. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. Now let's see the next question based on the same passage, right, this one. So we have to tell about the assumptions. Author की assumptions क्या है, right, कि author क्या सोच के ये passage लिख रहा है ना. कौन से ऐसे पॉइंट है जो author ने मेंशन नहीं किया हुआ है, but the author is believing on those points, right. Now first देखते हैं, automobile factories are example of the circular economy, right. ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज क्या एग्जांपल है क्या सर्कुलर इकोनॉमी का, ऑथर ने कहीं पे बोला है क्या, राइट. ऑथर ने यूज किया है ऑटोमोबाइल को, राइट, पर बैटरी के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, फर्स्ट. सेकंड, अगर आप देखो ऑटोमोबाइल जैसे होते हैं, जैसे बाइक है, कार है ना, तो क्या ऐसा होता है क्या कि जो ओल्ड बाइक है उसको कंपनी वापस ले लेती है ना, फिर उसको ही यूज करके, मटेरियल को यूज करके अगेन दे आर मेकिंग द न्यू कार, ऐसा तो नहीं है, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, नहीं, ऐसा ऑथर नहीं बोल रहा है, वो बैटरी के बारे में सजेस्ट कर रहा है ना, पूरे ऑटोमोबाइल के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा है, राइट. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपैटिबल विद सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स.
तो मिनरल का हम सर्कुलर यूज कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज कंपेटेबल लाइक विद द ग्रोथ. हाँ ये सही है, क्योंकि ग्रोथ तो अगर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ के साथ कंपेटेबल नहीं होगा सर्कुलर इकोनॉमी, देन इट्स ऑफ नो यूज, राइट. तो ग्रोथ के साथ तो वो रहेगा ही कंपेटेबल, राइट. तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रोथ से. सो सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स इज कंपेटेबल विद ग्रोथ. हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ दिस इज करेक्ट. तो ऑथर ऐसा बोल रहा है तभी तो सर्कुलर इकोनॉमी को सजेस्ट कर रहा है, राइट. सो दिस इज करेक्ट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट. Now let's see the next passage. On this passage also there are two questions is being asked. One is about the central idea and the second is about assumption, right? So let's read the passage, right? So line by line we will read and just try to understand the passage. Okay. It is hard to predict. It is hard to predict how changes in the climate and atmospheric chemistry will affect the prevalence and virulence of agricultural disease, right? तो क्या बोल रहा है कि दिस इज हार्ड टू प्रेडिक्ट कि जो चेंजेस होंगे क्लाइमेट में और एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री में वो कैसे इफेक्ट करेंगे एग्रीकल्चरल डिजीज को, उनके प्रीवलेंस को एंड विरुलेंस को, राइट. ओके. अब देखो विरुलेंस का मतलब भी नहीं पता तब भी हम सेंस बना सकते हैं कि दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट डिजीज. द मेन थिंग इज अबाउट द डिजीज, एग्रीकल्चरल डिजीज. प्रीवलेंस तो पता होगा है ना, प्रीवलेंस मतलब एग्जिस्ट होना ना उसमें डिजीज के बारे में, राइट. ओके. नाउ बट देयर इज ए रिस्क दैट सच चेंजेस, कौन से चेंजेस, ये जो क्लाइमेट की वजह से होंगे, राइट, विल मेक सम प्लांट इन्फेक्शन मोर कॉमन, राइट. सो इन्फेक्शन, प्लांट इन्फेक्शन विल बिकम मोर कॉमन इन ऑल climatic zones, perhaps catastrophically, right. So part of the problem is that centuries of selective breeding have refined the genomes of most high value crop, right. तो एक प्रॉब्लम कहां से हो रही है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग करी है, राइट. सो द जीनोम गॉट रिफाइंड, राइट. दे आर spectacular at growing in today's condition, but genetic variation that are not immediately useful to them have been bred out. तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से क्या हुआ है कि जो उनके अंदर जीनोम थे, जेनेटिक वेरिएशन थे, है ना, वो क्या हो गए हैं, ब्रेड आउट हो गए हैं, राइट. क्योंकि वो अभी यूज नहीं हो रहे हैं, राइट. नाउ दिस इज ए गुड फॉर ईल्ड. ये किसके लिए अच्छा है, दिस इज गुड फॉर ईल्ड, प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, बट बैड फॉर कोपिंग विद चेंजेस, राइट. बिकॉज सेलेक्टिव ब्रीडिंग करी है, राइट. बट तो ये किसके लिए, प्रोडक्शन के ईल्ड के लिए अच्छा है, बट किसके लिए अच्छा नहीं है, कोपिंग विद चेंजेस, चेंजेस को कोप करने के लिए अच्छा नहीं है, राइट. ए माइनर डिजीज और इवन एन अननोन वन कुड सडनली रैम्पेज थ्रू ए जेनेटिकली होन्ड क्रॉप, राइट. कोई माइनर डिजीज भी होगी, राइट, तो वो क्या कर देगी, पूरी के पूरे उसको तबाह कर देगी, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप को, राइट. So this is the passage. So passage is about, अगर आप देखो किसके बारे में, the passage is about के क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चरल डिजीज के बारे में पैसेज है, और वो भी उसके ऊपर है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, राइट, उसके ऊपर है, राइट, कि वो कैसे इफेक्ट करेगा इनको, क्योंकि सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से क्या हुआ है, उनमें जेनेटिक वेरिएशन जो थे वो खत्म हो गए हैं, राइट. सो नाउ दे आर नॉट एबल टू कोप विद एनी काइंड ऑफ चेंज. ओके. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. So this is the question. The question is about the central idea conveyed by the passage. So first option क्या है, global climate change adversely affect the productivity of crop. So ये सही है, productivity of crop को affect करेगा, right. Climate change जो होगा this will adversely affect, है ना, ये this is correct. ये statement तो सही है, but this is a very general statement, right. और ये क्या central idea है passage का ये central idea भी नहीं है, right. तो ये statement सही है, but this is not the central idea of the passage. So that's why we are not considering this option. Okay. Now second, our total dependence on genetically honed crop entail possible food insecurity, right. ये भी सही है कि हमारा जो टोटल डिपेंडेंस है ऑन जेनेटिकली honed crop entail possible food insecurity. This is also correct, right. ये सही है, इसको कंसीडर किया जा सकता है, पर और ऑप्शन देखते हैं पहले, ठीक है. नाउ थर्ड, आवर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन, राइट. जो हमारी फूड सिक्योरिटी है ये किस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन, राइट. वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए,
है ना, कुछ और भी होना चाहिए, पर क्या ऑथर ने ऐसी कोई बात करी है? राइट, ऑथर ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं है ना, कि इसके अलावा भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अलावा भी हम किसी और चीज से अपनी फूड सिक्योरिटी को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। सो ऐसा कोई पैसेज में डिस्कस नहीं किया है, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस। नाउ फोर्थ देखते हैं, जेनेटिकली होम क्रॉप शुड बी रिप्लेस विद देयर वाइल्ड वेराइटीज इन आवर प्रेजेंट कल्टिवेशन प्रैक्टिस। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आप देखो ये बहुत एक्सट्रीम बोल रहा है कि जितने भी जेनेटिकली होम क्रॉप हैं दे शुड बी रिप्लेस्ड विद देयर वाइल्ड वैरायटी इन आवर प्रेजेंट कल्टिवेशन प्रैक्टिस, दैट जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं दे शुड बी रिप्लेस। सो दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। फर्स्ट, सेकंड, उसने बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हमें फायदा हुआ है कि यील्ड प्रोडक्शन में, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now this is the next question. So in this question we have to tell about the assumptions, right? Assumptions क्या क्या है? Right, now first, global climate change can result in the migration of several plant disease to new area, right? So this is correct, है ना, पैसेज में ऐसा मेंशन किया है जब उसने बोला है कि the disease can spread in the all climatic zone, right? I will show you, right? ऑथर ने कहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी किया था, राइट। देखो यहाँ पे, राइट, आई गेस दिस इज विजिबल टू यू, ऑल क्लाइमेटिक जोन, राइट, राइट, द इन्फेक्शन मोर कॉमन, राइट, इन ऑल क्लाइमेटिक जोन। तो ये स्प्रेड हो सकते हैं सारे जोन्स में, राइट। सो द फर्स्ट इज करेक्ट, राइट, तो फर्स्ट अजम्पशन करेक्ट है, right? Now let's see the second one. Scientific understanding of the wild relative of our present crop would enable us to strengthen food security, right? So if there is some scientific understanding of the wild relative of our present crop, जो our present crop है, right, genetically modified जो crop है, अगर उसका हमें wild relatives scientifically कोई पता लग जाता है, so this will enable us टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। हाँ सही है, क्योंकि उसने बोला है उससे क्या हुआ, अभी क्या हो गया है कि जो जेनेटिक वेरिएशन थे दे गॉट ब्रेड आउट, तो इसलिए नाउ द प्लांट आर नॉट एबल टू कोप विद द चेंजेस। पर अगर कोई ऐसे वेरिएशन उनके वाइल्ड रिलेटिव्स हमें पता लग जाएंगे देन दे कैन कोप विद द चेंजेस। सो दिस इज करेक्ट, ऑथर के दिमाग में ऐसा कुछ होगा, राइट, अजम्पशन है क्योंकि, सो दिस इज करेक्ट, राइट। सो द आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, राइट। थोड़ा सेकंड वाला अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे अगर आप देखो उसने बोला है कि जेनेटिक वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस अजम्पशन इज करेक्ट, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। ऑन दिस पैसेज आल्सो देयर आर टू क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, राइट, वन इज अबाउट द सेंट्रल आइडिया एंड द सेकंड इज अबाउट द अजम्पशन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज। देखो अगर एक बार पैसेज समझ में आ गया ना देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। सो नाउ लेट्स रीड द पैसेज। A good statesman, like any other sensible human being, learn more from his opponent than from his fervent supporter. Now, अगर इसका मतलब नहीं भी पता ना, fervent का इसका मीनिंग नहीं पता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें समझ में आ रहा है स्टेटमेंट से, राइट, कि वो ये क्या बोल रहा है कि जो गुड स्टेट्समैन है वो किससे लर्न करता है, जैसे और ह्यूमन बींग है उनकी तरह वो अपने अपोनेंट से ज्यादा लर्न करता है देन फ्रॉम हिज सपोर्टर, राइट। फॉर हिज सपोर्टर will push him to disaster unless, सपोर्टर उसको कहां पे पुश कर देंगे, डिजास्टर में, unless his opponent show him, उसके अपोनेंट उसको क्या शो कर रहे हैं, where the danger are, राइट। तो अपोनेंट उसको डेंजर बता रहे हैं लेकिन जो उसके सपोर्टर है वो नहीं बताते, ठीक है। सो इफ ही इज वाइज he will often pray to be delivered from his friend because they will ruin him, right, क्योंकि वो उसको रून कर देंगे। now but though it hurts he ought also to pray never to be left without opponent, right। वो क्या प्रे करता है, that he is never left without opponent, for they keep him on the path of, क्योंकि वो उसको किस पे रखते हैं, on the path of reason and good sense, right। opponent उसकी कैसे हेल्प कर रहा है, स्टेट्समैन की, this is about that, right। now the national unity of free people depend upon a sufficiently even balance of political power to make it impracticable for the administration
to be arbitrary and for the opposition to be revolutionary and irreconcilable, right? Now ये लाइन क्या बोल रही है, थोड़ी सी ट्रिकी लाइन लग रही है, बट दिस लाइन इज सेइंग दैट जो नेशनल यूनिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट देयर शुड बी सफिशिएंटली इवन बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्बिट्रेरी ना हो पाए और जो अपोजिशन है वो भी रिवोल्यूशनरी या इररिकंसाइलेबल ना हो, राइट? नाउ पैसेज समझ में आ गया? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. So this is the first question. The first question is about the critical message conveyed by the author of the passage, right? First, without opposition parties, the administration in a democracy gets to become more responsible. ये बोल रहा है बिना अपोजिशन के एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबल होगा, जबकि वो बोल रहा है आर्बिट्रेरी होगा, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ सेकंड, डेमोक्रेसी नीड टू हैव रिवॉल्यूशनरीज इन अपोजिशन टू कीप द गवर्नमेंट अलर्ट. कि डेमोक्रेसी क्या चाहती है, दैट अपोजिशन में रिवॉल्यूशनरी हो, राइट? उसमें उल्टा बोल रहा है, राइट? कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए ताकि अपोजिशन में रिवॉल्यूशनरी वाली टेंडेंसी ना हो, राइट? सो सेकंड इज रॉन्ग. नाउ थर्ड, रूलर्स इन ए डेमोक्रेसी नीड द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल. नाउ दिस सर्वाइवल इज मेकिंग इट रॉन्ग, राइट? सो अपोजिशन की इंपॉर्टेंस बता रहा है पैसेज, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए चाहिए, राइट? पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए वो, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, राइट? नाउ फोर्थ, इन ए डेमोक्रेसी द अपोजिशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. हाँ ये सही है, बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड गुड गवर्नेंस, राइट? गुड गवर्नेंस आएगी अगर एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्रेरी नहीं होगा, राइट? और जो रूलर के अंदर है गुड सेंस आ रहा है ना, रीजंस आ रहा है. सो दिस इज करेक्ट, राइट? सो दिस इज द व्यू ऑफ द ऑथर, राइट? सो ये बिल्कुल पूरा कैप्चर कर रहा है जो ऑथर बोल रहा है, राइट? सो option D is the correct answer choice, right? Now let's see the next question from the same passage. So this is about the assumption पूछिए, right? So what are the assumptions have been made? In a democracy a strong opposition is required only if, देखो जब भी only वगैरह आता है ना, तब आपको ना थोड़ा सा रखना चाहिए this is a red flag, right? A strong opposition is required only if the head of government is indifferent, right? तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अपोजिशन होती है सो बैलेंस ऑफ पावर रहता है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, राइट? नाउ सेकंड, द मोर एग्रेसिव द अपोजिशन, अब देखो मोर आ गया यहाँ पे, मोर एग्रेसिव द अपोजिशन द बेटर इज द गवर्नेंस इन ए डेमोक्रेसी. तो बेटर गवर्नेंस होगा. देखो अगर ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा देन दे विल बिकम लाइक रिवॉल्यूशनरीज, राइट? इररिकंसाइलेबल, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, है ना? तो ऐसा नहीं बोल रहा है ऑथर, राइट? ऑथर ये बोल रहा है कि अपोजिशन का होना अच्छा होता है लेकिन मोर एग्रेसिव होना अपोजिशन का, राइट? दिस इज बेटर फॉर गवर्नमेंट, दिस इज रॉन्ग, राइट? सो द आंसर विल बी नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, राइट? सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओके? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. देयर हैज बीन on this passage also there are two questions is being asked. One is about the assumption and the second is about the central idea, right? So let's read the passage and try to understand that. अगर पैसेज देखो समझ में आ गया ना, then solving question will be easy, right? There has been no democracy that has grown economically without corporate capitalism, right? It helps, ये लाइन समझ में आ गई, राइट? इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी. किसके बारे में बात कर रहा है? कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की. ये क्या हेल्प करती है? मॉडर्नाइजिंग में. किसको? इकोनॉमी को. एंड अनेबलिंग द ट्रांजिशन, क्या अनेबल करती है? ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस, राइट? विच आर इनएविटेबल विद ग्रोथ, ओके? इट जनरेट ग्रोथ. कौन? इट का मतलब किसको कर रहा है? ये कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, राइट? And there is no other way to fix a country unemployment challenge without a further impetus, मतलब stimulus to private business, right? Big companies can operate on a large scale and become competitive both domestically and externally. A vibrant corporate capitalist base also lead to additional रेवेन्यू फॉर द स्टेट, राइट? कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म होगा तो क्या फायदा होगा? रेवेन्यू ज्यादा होगा, राइट?
विच इन टर्न कैन बी यूज्ड फॉर ग्रेटर वेलफेयर, राइट। वो किस में यूज किया जाएगा? फॉर ग्रेटर वेलफेयर फॉर द मार्जिनलाइज एंड क्रिएटिंग ए मोर लेवल पेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। सो ग्रेटर वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा और अपॉर्चुनिटीज के लिए, राइट। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरा पैसेज क्या कर रहा है, दिस इज टेलिंग द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इन डेमोक्रेसी, राइट। ठीक है, पूरा पैसेज वही है, राइट। उसके बारे में बता रहा है क्या क्या फायदे हैं कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। पैसेज इजी है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, राइट। सो दिस इज द क्रिटिकल मैसेज conveyed by the author of the passage, right। first option क्या है? corporate capitalism is important for economic growth of a state and also for a democracy, right। तो corporate capitalism important है किसके लिए? economic growth of a state and also for a democracy। हाँ, so ये सही है ना, corporate capitalism जरूरी है, right। so this can be the answer, right। now second read करते हैं। corporate capitalism is imperative for a modern state to achieve its political objective, right। so political objective के लिए नहीं है, right। political objective की बात ऑथर ने नहीं करी है, right। इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की, right। so this is wrong, option B, right। option C देखते हैं। now no state can ensure its economic survival, ये बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वाइवल ही नहीं होगा, no state, किसी भी स्टेट का, for long without the rule of a corporate capitalism। corporate capitalism अगर नहीं है किसी स्टेट में तो उसका इकोनॉमिक सर्वाइवल नहीं होगा। ये गलत है, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी है, राइट, कि ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो भी डेमोक्रेसी में, और यहाँ पे ये नो स्टेट बोल रहे हैं, राइट। नाउ फोर्थ देखते हैं। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव म्यूचुअल डिपेंडेंस, राइट, फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, राइट। तो ये कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के फायदे बता रहे हैं, है ना, डेमोक्रेसी में, कि क्या क्या फायदे हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल डिपेंडेंस, राइट, कि वो पॉलिटिकल पार्टी को कैसे फायदा करेगा, राइट, या कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को क्या फायदा होगा डेमोक्रेसी से, राइट। इसके बारे में पैसेज नहीं है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। पैसेज इज अबाउट कि डेमोक्रेसी को क्या क्या फायदा होगा कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म से, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। अगर आप देखोगे डायरेक्टली पैसेज में ही दिया गया है, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए स्टेट एंड ऑल्सो फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में बात करी है, फर्स्ट लाइन ही यही है, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सी द सेकंड question on this passage। now this is the second question, so we have to find the assumptions that have been made, right। first, corporate capitalism promote the growth of labor force and provide more employment opportunity। ये बिल्कुल सही है, employment opportunity के बारे में भी बात करी गई है, right। so this is correct, right। ये तो डायरेक्टली पैसेज में ही दिया हुआ है, राइट, कि अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू सॉल्व होता है, राइट, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म से, एंड ग्रोथ होगा लेबर फोर्स का। दिस इज करेक्ट। नाउ सेकंड, पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आर बेनिफिट बाय कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट। सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की वजह से नहीं होगा, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम की वजह से होगा, राइट, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, राइट, उसकी वजह से होगा, राइट। तो डायरेक्टली उसकी ट्रिकल डाउन की वजह से नहीं होगा, राइट, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट, ओके। ड्यू टू इसने डायरेक्टली लिखा है, ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं, ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है। सो दिस इज ड्यू टू द वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। सो दिस इज द नेक्स्ट पैसेज, दिस इज अ वेरी स्मॉल पैसेज, राइट, and the question is being asked, right, the question is the best explanation of the above passage, right। so the passage is, a network of voluntary association stands as a buffer between the relative powerless individual and the potentially powerful state, right। so ये बोल रहा है, इससे क्या मीनिंग आ रहा है? इससे मतलब ये आ रहा है कि जैसे कि एनजीओज होते हैं ना, so they are the voluntary association, so they stand as a buffer between individual and state, राइट, उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। नाउ अब देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं क्या क्या है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट एम्फेसाइजेस द इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एनफोर्स इट्स विल इन प्रैक्टिस अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ सर्टेन ग्रुप विद इन इट, राइट।
तो ये तो बोल रहा है कि इनेबिलिटी ऑफ स्टेट है टू एनफोर्स इट्स विल अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ सर्टेन ग्रुप विद इन इट, राइट। तो ये यहाँ पे ये तो बोल रहा है, यहाँ पे फोकस कर रहा है किस पे, इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट पे फोकस कर रहा है, राइट, कि स्टेट अपना एनफोर्स नहीं कर पाएगी, राइट। पर ये नहीं बोल रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट इट विल गिव टू द इंडिविजुअल, राइट, और सर्टेन ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट, और ऑप्शंस देखते हैं, राइट। इट इज ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर, राइट। सो ये सही है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, पर उसका बेनिफिट पैसेज के हिसाब से इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, राइट। So this is not what the passage is saying, right? Now, third, it takes individual out of a state of isolation and give them a chance to participate in the common endeavor, right? तो ये बोल रहा है कि ये इंडिविजुअल को क्या करता है, उसके आइसोलेशन से बाहर ले जाता है, and give them a chance to participate in the common endeavor, right? ताकि वो common endeavor में participate करे, right? तो ऐसा भी नहीं कर रहा है, right? इसका मतलब ये नहीं है पैसेज का। Now, fourth देखते हैं, it permits citizen to have variety of loyalties and एलिजेंस, राइट। सो यहाँ पे ये क्या परमिट कर रहा है, इट परमिट यानी एनजीओ और द वॉलंटरी एसोसिएशन परमिट सिटीजन टू हैव ए वैरायटी ऑफ लॉयल्टी, दे कैन हैव लॉयल्टीज, वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज, राइट, लाइक दे कैन बी विद द गवर्नमेंट और विद द अपोजिशन, और दे कैन बी न्यूट्रल, सो दे कैन हैव वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज एंड एलिजेंस। सो दिस इज करेक्ट, राइट, कि एनजीओ की वजह से ये बेनिफिट हो रहा है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, दैट इंडिविजुअल हैव ए चॉइस, राइट। सो दिस इज करेक्ट, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन D, right? Now let's see the next passage from the 2025 paper, right? So on this passage there is only one question is being asked, right? So the passage is, first of all we will read the passage, right? A single number for inflation is an aggregate across different commodities and service, right? So the passage is talking about the inflation, right? First line is about the inflation. A single number for inflation is an aggregate. Aggregate है across different commodity and service, right? एक single number दे रहे हैं inflation के लिए, okay? The price rise differ for different item of consumption, right? तो जो price rise है that is differ, price rise सब में अलग अलग हो रहा है, right? But we are giving the single number for inflation, right? So the single number is arrived at by, single number कैसे आ रहा है वो बता रहा है, single number is arrived at by assigning वेट टू डिफरेंट कमोडिटी एंड सर्विस। तो वेट असाइन कर रहे हैं, फिर एक सिंगल नंबर आ रहा है, राइट। नाउ अब ये WPI का बता रहा है, फॉर WPI द वेट इन प्रोडक्शन आर यूज्ड, फॉर CPI नाउ टॉकिंग अबाउट CPI, फॉर CPI द कंजम्पशन बास्केट इज यूज्ड, राइट। सो CPI के लिए क्या यूज कर रहा है, कंजम्पशन बास्केट, राइट। बट पीपल आर नॉट होमोजीनियस, राइट, पीपल अलग अलग हैं। द कंजम्पशन बास्केट इज वास्टली डिफरेंट फॉर द पुअर, द मिडिल क्लास एंड द रिच, राइट। तो CPI को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कंजम्पशन बास्केट के अकॉर्डिंग, बट वो पैसेज क्या बोल रहा है, दैट लोग जो है दे आर नॉट होमोजीनियस, एक जैसे नहीं है, राइट। सो कंजम्पशन बास्केट सबकी अलग अलग है, डिफरेंट फॉर द पुअर के लिए अलग है, मिडिल क्लास के लिए अलग है एंड रिच के लिए अलग है। हेंस नाउ द कंक्लूडिंग, हेंस आ गया, राइट। द CPI इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ दीज क्लासेज एंड ए कंपोजिट इंडेक्स रिक्वायर मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, राइट, वो सजेस्ट कर रहा है एवरेजिंग द बास्केट, राइट। तो बोल रहा है एवरेज करना है बास्केट को, राइट। सो दिस इज द पैसेज, आई होप समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, राइट। सो द क्वेश्चन इज दिस, सो दिस इज आस्किंग मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। सो क्या मैसेज आ रहा है, राइट। फर्स्ट देखते हैं, वी मस्ट यूज, ये बोला है हमें WPI यूज करनी चाहिए exclusively in measuring price rise and CPI should be done away with, CPI को छोड़ देना चाहिए, राइट। तो दिस इज रॉन्ग, है ना, ऐसा पैसेज में कुछ बोला नहीं है कि WPI को यूज करना चाहिए, राइट। सेकंड, द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम कमोडिटीज, राइट। तो इन्फ्लेशन रेट जो है हम अभी, है ना, इंडिविजुअल आइटम का तो मेजर कर ही नहीं रहे हैं, है ना। वहां पे उसने बताया कि कैसे मेजर कर रहे हैं, राइट, एग्रीगेट करके मेजर कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज करेक्ट, पर ये मेन मैसेज तो नहीं है, तो देखते हैं अगर कोई और आंसर होगा देन वी विल टेक दैट, ओके। सी, ऑप्शन सी देखते हैं, इन्फ्लेशन डेटा अंडर प्रेजेंट सर्विसेज इन द कंजम्पशन बास्केट। देखो अपनी जनरल नॉलेज की कोई भी यहाँ पे नॉलेज यूज नहीं होगी ना,
जनरल नॉलेज का आपको जितना भी आइडिया है वही वाला फैक्ट्स यूज नहीं करना है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि सर्विसेज को अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कंजम्पशन बास्केट। पैसेज में कहीं ऐसा लिखा हुआ है? पैसेज में कहीं पे मेंशन नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, राइट। नाउ ऑप्शन डी देखते हैं, नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज नॉट रियली ऑफ एनी यूज टू एनीबडी इन द कंट्री, राइट। ऐसा पैसेज में लिखा है कि इन्फ्लेशन रेट की हमें जरूरत ही नहीं है, कंट्री में किसी को नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पर ऑप्शन बी अगर आप देखो ये मेन मैसेज नहीं है, सेंट्रल आइडिया नहीं है, राइट। बट ये है कि दिस इज करेक्ट, क्योंकि पैसेज ने बताया कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंडिविजुअल आइटम का मेजर नहीं हो रहा है, राइट। ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। सो दिस इज द नेक्स्ट पैसेज एंड इस पैसेज पे वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, राइट। So first of all we will read the passage, right? So this passage is little bit confusing, right? So आप थोड़ा ध्यान देना, right? So just focus here. Trust stand commonly defined as being vulnerable to others. So trust को कैसे define कर रहे हैं? That being vulnerable to others. Entrepreneurship implies trust in others and willingness to expose oneself to betrayal. राइट, सो यहां पे ये बात कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रस्ट क्या है ना। और वहां पे क्या रिस्क है? दैट यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ फॉर बिट्रेयल, राइट। ट्रस्ट इन एक्सपर्ट सिस्टम इज द एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजिंग बिहेवियर, राइट। ट्रस्ट इन एक्सपर्ट सिस्टम इज द एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजिंग बिहेवियर। ट्रस्ट इटसेल्फ emerges as a super commodity in the social market and define the characteristics of trust। क्या define कर रहा है? Characteristics of goods and services in global market, right? So trust emerges as a super commodity, right, in the social market and ये क्या define कर रहा है? The characteristics of goods and services in global market. Now trusting conduct also means holding others also mean, right? इसका मतलब अब ये न्यू बता रहा है ना, उसका एक नया वेरिएशन बता रहा है, ट्रस्टिंग का न्यू कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, राइट। ट्रस्टिंग कंडक्ट also mean holding others in good esteem and an optimism that they are or will be competent in certain respect, right? तो ट्रस्टिंग का बता रहा है कि आप ट्रस्टिंग कंडक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी है कि आप दूसरों को टेकिंग इन ए गुड स्टीम, राइट, एंड ऑप्टिमिज्म, एंड आपको विश्वास है दैट दे विल बी और दे आर कॉम्पिटेंट हैं, राइट। तो आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो, राइट। सो दिस इज अबाउट, सो दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, है ना, और ट्रस्ट के साथ बिट्रेयल भी हो सकता है, राइट। तो वो ये भी बोल रहा है पैसेज में, राइट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। So which one of the following statement best reflect the crux? We have to find the crux of the passage, right? Now, first, trustworthiness cannot be expected in entrepreneurship, right? तो entrepreneurship की बात करी है उसने, right? तो ये बोल रहा है trustworthiness cannot be expected, यानी वहां पे सारे लोग betrayal करेंगे ऐसा नहीं है, right? उसने बोला है कि वहां पे हो सकता है betrayal, right? So this is wrong, है ना, क्योंकि आपको बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, राइट। मैसेज ने यही बोला है, राइट। बट दे आर ओपन फॉर बिट्रेयल ऑल्सो, कि उनको पता है बिट्रेयल भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, यानी हो ही नहीं सकती है ना। ये एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि वहां ट्रस्टवर्दीनेस हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे? एंटरप्रेन्योरशिप है। सो दिस इज रॉन्ग। ट्रस्टवर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। सो जो ट्रस्टवर्दी पीपल होते हैं दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। अब देखो दो चीज है, राइट, कि जैसे कि ए है ना, ए इज ट्रस्टिंग बी, वो ये चीज बता रहा है कि जो पर्सन ए है वो ट्रस्ट कर रहा है बी पर, राइट। पर ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये ट्रस्टवर्दी पीपल के बारे में बात कर रहा है, राइट। जैसे कि मान लो ए अपने आप को बोल रहा है दैट आई एम ट्रस्टवर्दी, राइट, कि इस पे कोई ट्रस्ट कर सकता है। बात समझ रहे हो? सो टू कंसेप्ट, यहाँ पे दो कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रस्टवर्दी पीपल इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, यू आर ट्रस्टिंग समवन इज अ डिफरेंट थिंग। यू आर ट्रस्टिंग समवन इज अ डिफरेंट थिंग एंड यू योरसेल्फ, मैं खुद ट्रस्टवर्दी हूँ, वो एक अलग चीज है, और मैं किसी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ वो अलग चीज है, ठीक है। सो बोला है ट्रस्टवर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल, सो दिस इज रॉन्ग, राइट। तो इसने क्या किया? ट्विस्ट कर दिया है। मैं पैसेज में ऐसा कोई पॉइंट बोला नहीं है ट्रस्टवर्दी पीपल के बारे में, राइट।
नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट बीइंग एक्सपोज टू बिट्रेयल, बिना बिट्रेयल के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, राइट, और पैसेज में ऐसा कोई मेंशन भी नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, बट लेट्स रीड इट। ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट एंटेल रिस्क। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट, जैसे उसने बताया दैट्स ए सुपर कमोडिटी है, और सेकंड में भी बताया कि जब आप ट्रस्ट कर रहे हो देन आप किसी को किस में ले रहे हो, है ना, गुड एस्टीम में देख रहे हो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि दैट विल बी कॉम्पिटेंट, राइट। और ट्रस्ट के बारे में उसने ये भी बताया कि दैट्स ए सुपर कमोडिटी, है ना, एंड इट टेल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, इन ए ग्लोबल मार्केट। सो ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट, दो इट एंटेल रिस्क, रिस्क के बारे में उसने बताया कि बिट्रेयल हो सकता है, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है।